الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی و محترم سامعین عظام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بابرکت مہینے سے دوبارہ نوازا، اور اس کا کرم یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے سیکھنے کے ذرائع ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کو سمجھتے ہوئے روزوں کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے اور دیگر جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ان سب کے تعلق سے ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کلام پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جیسا کہ مفسرین اعظام بہت سارے ایسے کیا کہ الف لام میم اس کا کچھ معنی نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی سے جانتا ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں، جس کے اندر رتی برابر بھی حقیقت کے علاوہ کچھ اور اس کے اندر مندرج نہیں۔ لا ریب فیہ، شک اگر کیے تو ایمان لانا بیکار ہو گیا، یقین رکھنا مولا کے اوپر بیکار ہو گیا۔ نمازوں کے تعلق سے ہم جتنے بھی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی بیکار ہو گئے، طواف بیکار ہو گیا، احرام باندھنا بیکار ہو گیا۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ اب قرآن کا نزول کا مقصد، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کس لیے نازل کی گئی، قرآن کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کے اوپر اتاری گئی، آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ھدی للمتقین، میں نے یہ کتاب نہیں اتاری مگر ہدایت کے لیے، مطلب ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، ہدایت آخر ہے کیا؟ کس چیز کو کہتے ہیں ہدایت؟ نماز پڑھ لیے یہ ہدایت ہے، روزہ رکھ لیے یہ ہدایت ہے، حج کر لیے یہ ہدایت ہے، جیسا اللہ رب العزت احکام بتا رہا ہے ویسا ویسا ہم عمل کرتے چلے گئے یہ ہدایت ہے؟ کیا اسی کو ہدایت کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ ہدایت کی ایک جھلک ہے پر ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ رب العزت جیسا آپ سے راضی ہے آپ اس حالت میں اللہ سے راضی رہنا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضور سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آپ کے سامنے دو ملائک نازل ہوئے، بولے کہ اے ابراہیم کیا ہم آپ کی بجھا دیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائے کہ میں جس کو پوجتا ہوں، جس کے سامنے میں اپنا ماتھا رکھتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیا وہ مجھ سے باخبر نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جواب سن کر ملائکہ بولے کہ ہاں وہ باخبر ہے، اگر وہ مجھے آگ میں جلانا چاہ رہا ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہدایت ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے میں ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں ثواب ہونا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ثواب ہونا، حج کر رہے ہیں،
हमें सवाब होना, बेशक सवाब है। अगर आप रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप तवाफ कर रहे हैं, पर आपके दिल में ये कहीं है कि लोग मुझे मुत्तकी कहना, तो हिदायत नहीं है। लोग मुझे नमाजी कहना, ये हिदायत नहीं है। लोग मुझे कुरान का कारी कहना, ये हिदायत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वही फरमा रहा, हुदन लिल मुस्लिमीन भी कह सकता था, हुदन लिल मुमिनीन भी कह सकता था, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी मतलब वो जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बसी हो, उसको मुत्तकी कहते हैं। जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत बसी हो, उसको मुत्तकी कहते हैं। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे मुत्तकीन किसको कहते हैं वो भी बोल दे रहा है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो मेरे महबूबीन और उशाक हैं जो मुझे बिन देखे ईमान ला लिए। अजीजान मोहतरम, मोहब्बत के लिए शर्त ये है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो उसके ताल्लुक से कुछ जानना। हम इब्जैन मॉडल स्कूल है, बच्चों को तालीम से बहुत मोहब्बत है। तालीम से जब मोहब्बत है तो वो लोग जानते हैं कि तालीम क्या चीज है, इसको पढ़ के हम क्या बन सकते हैं। अब एक गाड़ी है, गाड़ी से मोहब्बत हो गई किसी को, क्यों? वो जानता है कि गाड़ी क्या है, इस वजह से। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मोमिन मोहब्बत करता, उसकी एक शान अलग है। वो अल्लाह को कभी देखा नहीं, अल्लाह कैसा है क्या है, पर सुनी बात हुजूर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से जो सुने, उसको सुनकर अल्लाह से मोहब्बत कर रहा। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो मुझे देखा नहीं पर मुझ पर यकीन रखता है, ऐसा मोमिन है। व युकीमून अस्सलाता, और जैसा मैं हुक्म देता हूं वैसे ही अमल करता है। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता, जो नमाज को कायम करता है। अज़ीज़ान मुहतरम, जैसा कि नमाज की बात चल रही है, रमजान का महीना इसीलिए आया कि रोजों के साथ साथ हम नमाजी भी बने। रोजों के साथ साथ हम नमाजी भी बने, रोजों के साथ साथ हमें जो गुनाहों की आदत है वो आदत छूटे। हमें जो गुनाहों की आदत है वो आदत छूटे, जैसे कि बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, बेअदबी करना, लापरवाही करना हमारे जिंदगी के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो एहकाम दे रहा, उस एहकाम के ऊपर लापरवाही बरतना, इन सब से छुड़ाने के लिए रमजान आया। रमजान का देने का मकसद, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमें रमजान से नवाजा, उसका भी मकसद ये है, जैसे कि फरमा रहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब वो ताकि तुम मुत्तकी बनो, अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत से फलाह पाए, आपको कामयाबी का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत हाथ में दे दिया। आगे वही फरमा रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, युकीमून अस्सलाता, ये युकीमून अस्सलाता जो है पांचगाना नमाज की बात नहीं चल रही यहाँ पे, नवाफिल में कसरत होना। एक मोमिन है, उसके नवाफिल में कसरत होना, पंचगाना नमाज तो है ही। अजीजान मोहतरम, एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे मोमिन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत में सवाल करेगा, पंचगाना नमाज तो मैं तुझे दिया था, वो तेरे लिए था, पर मेरे लिए क्या है? क्या तू तहज्जुद गुजार बना? क्या तू अवाबिन की पाबंदी किया करता था? क्या तू नफिल रोजे भी रखा करता था? मतलब लअल्लकुम तत्तकून, मुत्तकी बनना जो रमजान का मकसद ये है कि आपको रोजों से मोहब्बत होना, नमाज से मोहब्बत होना, मस्जिद से मोहब्बत होना, तिलावत से मोहब्बत होना। अजीजान मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, बात कहने की ये है, कुरान पढ़ने की किताब नहीं, कुरान समझने की किताब है, कुरान समझकर अमल करने की किताब है। फरमाया युकीमून अस्सलाता, जिसको जितनी जिससे मोहब्बत होती उससे उतना ही ताल्लुक उसका मजबूत होता, ये बात है। अगर एक है दुनिया वाला, उसको दुनिया से बहुत मजबूत रिश्ता रहता, गाड़ी से जिसको मोहब्बत रहती, गाड़ी से उसको एक मजबूत रिश्ता बांध के रखता अपना।
वैसे अगर अल्लाह से जिसको मोहब्बत है, चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो, चाहे फजर हो या गैर फजर हो, जोहर हो या गैर जोहर हो, हमेशा हर आन अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मशगूल रहता। वैसे मुत्तकीन के लिए ये हिदायत है। कुरान का मकसद वैसे जिसका दिल अल्लाह के लिए प्यासा है उसके लिए रहनुमाई है और मशाल राह है। जैसा कुरान लेके चलते रहता वैसी मोमिन चलते रहता। बरमारा वो जो मुझे बिन देखे मोहब्बत कर रहे हैं और नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं मेरे लिए, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया वो खर्च कर रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ पे रज़क़ना का मतलब खाना पीना नहीं है, रिज्क। रिज्क का माना अरबी में हर एक चीज की बढ़ोतरी को कहा जाता। उम्र में बरकत हो यानी उम्र में रिज्क हो, तालीम में बरकत हो, तालीम में रिज्क हो, नमाजों में बरकत हो, नमाज में रिज्क हो। बुजुर्गों और दोस्तों, जिस्मानी एतबार से कुव्वत है हमारी, तो अल्लाह यही चाह रहा रमजान में कि वो कुव्वत को भी मेरे तरफ सर्फ करो। रमजान का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे लिए बनो। आप खाना पीना जो है हलाल था भाई आपके लिए, शव्वाल में हलाल हो जाएगा, फिर दोपहर में आप खा सकते। रमजान में दोपहर में खाना हराम है। नमाज पढ़ना फर्ज है तो नमाज छोड़ना हराम है, और वो हराम काम की जब हमें आदत लग गई तो हराम काम छोड़ना हमारे लिए फर्ज हुआ। ये बात है। कुरान पढ़ना समझना हर एक मोमिन के लिए फर्ज है। अगर वो पढ़ रहा नहीं, समझ रहा नहीं, बेरगबती से जिंदगी गुजार रहा, तो वो बेरगबती को छोड़ना फर्ज हुआ, यानी कि अब वो हराम काम में मुबतला है, कुरान की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ये हमें जो है पाबंद कर रहा, एक ट्रेनिंग दे रहा रमजान के अंदर कि शव्वाल हम कैसे गुजारना, जी कायदा का महीना हम कैसे गुजारना। रमजान का महीना आ गया, जोहर में तिलावत कर लिए, शव्वाल का महीना आया तभी भी तिलावत जिंदा रहना जोहर में। तो बड़े मोमिनीन कहा करते थे कि अगर रमजान में एक शख्स जोहर के बाद 1 घंटे की तिलावत कर रहा, अगर शव्वाल में भी वो तिलावत जारी है, इसका मतलब ये है कि रमजान के जो जोहर के बाद आपकी तिलावत हुई वो मकबूल हुई। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जारी रखा आपके ऊपर। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने खाना पीना छोड़ दिया अल्लाह के लिए। युनफिकून खर्च कर दिया हम अल्लाह के लिए। हम थोड़ी देर दुनिया के तरफ मुतवज्जे रहते थे, जैसा रमजान का महीना आया उसको भी तरक कर दिया। किसके लिए? अल्लाह के लिए। बताया गया कि एक कमरा है, वो बंद है, ठंडे पानी का गिलास रखे हुआ है, असर का वक्त है। एक नौजवान जो है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिए से बाख्तियार है, वो चाहे तो उठा के पी सकता। सवाल हुआ कि क्यों नहीं पी रहा? जवाब आया उसके दिल से, वो मोमिन के दिल से जवाब आया कि मुझे मेरा मौला देख रहा है, अगर मैं पी लिया तो मुझे मेरा मौला सवाल करेगा। ये तकवा रमजान हमें सिखाता कि एक गाली देने से पहले आपके दिल में ये ख्याल आना कि ये मेरा मौला देख रहा। गाली देना हराम है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा गुनाह करने जा रहे, गुनाह का इर्तिकाब हो रहा, तो ये सवाल आना है कि जवाब आना हमारे दिल से कि ये मेरा मौला देखेगा, इसके ताल्लुक से सवाल करेगा। जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं वो मुझसे रूठेगा, वो मुझसे नाराज होगा। उसकी नाराजगी की वजह से अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो बहुत बड़ी मेरे लिए बर्बादी है। वो नाराजगी से बचने के लिए वो जो मुझे कह रहा है मैं वो सुन लूंगा। फजर के बाद किसको सोना पसंद नहीं है? फजर के वक्त किसको सोना पसंद नहीं है? एक सर्दी का मौसम है, गर्म बिस्तर है, किसको सोना पसंद नहीं है? जब एक मोमिन उठता अल्लाह के लिए उठता। फजर की नमाज पढ़ने से थोड़ी ना पैसे आते, हाँ देने वाला पैसे वही है, ये हमारा अकीदा है। हर खैर व शर का मालिक वही है। जब उठता नमाज पढ़ता, वही मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मकसूद है। रमजान में भी ये सिखाने के लिए हमें रमजान दिया गया है। अल्लाह फरमा रहा वल्लदीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता, कायम करते हैं। कभी आज जोहर पढ़े कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर आन के अमले तवातुर को क़ियाम कहा जाता।
अमल तवातुर यानी पे दर पे कर लेते आ रहे, महीनों से चल लेते आ रहा वो अमल, उसको बोलते क़ियाम। नमाज, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आखिरी जो दावत थी नमाज, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी दावत नमाज। सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का फरमान ये है कि मन तरकस सलाता मुताम्मिदन फकद कफर, ये तो हदीस मुबारका है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान मुबारका है कि जो नमाज जानबूझ के छोड़ा उसने कुफ्र किया। मतलब क्या है कुफ्र का मतलब? अब छोड़ दिया जानबूझ के, अब कुफ्र करा नहीं, कुफ्र के बराबर अमल है। एक तरफ मौला पुकार रहा, कैसा मौला है? चांद और सूरज का मालिक है, हमारी उतरती और चढ़ती सांसों का मालिक है, जिसके हाथ में हमारे बरकतें हैं, हमारी बरकतों का मालिक, हमारे रिज्क का मालिक, हमारे खुशियों का मालिक, हमारे गमों का मालिक। ऐसा मालिक जब बुला रहा हमारे कि आओ मेरे सामने झुको, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अमलन तौर पे कुफ्र कर रहे हैं। हम उसको मान रहे हैं दिल से कि हमारा मालिक उन्हें, पर उसकी नाफरमानी कर रहे, कुफ्र के बराबर है। मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया। वैसे रमजान के रोजे भी है, जिसने जानबूझ के रमजान के रोजे छोड़े वही गुनाह के बराबर है। अजीजान मोहतरम, यही रमजान जो है हमें वतबत्तल इलैहि तबतीला सूरह मुज़म्मिल की आयत है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमा रहा कि आप खल्क से इस तरह टूट के मुझे याद कीजिए और वो दिल में सिर्फ मुझे ही बसाइए। ये हर मोमिन के लिए दावत है खैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं रहना, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं रहना, मतलब आपका अकीदा ऐसा मजबूत होना कि जो करता अल्लाह करता, अल्लाह के हाथ ही से खैर होता, अल्लाह के हाथ ही से शर होता, अल्लाह ही हमारा मालिक है, हमारी कमाई के अंदर बरकत देने वाला भी अल्लाह है। वल्लदीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब उसको बरकत मिल गई, अब खर्च भी कर रहा अल्लाह के लिए। हर अमल हमारा अल्लाह के लिए हो, मस्जिद के अंदर दिखाने के लिए नहीं, अतराफ में खानदान वालों के लिए नहीं। फरमा रहे वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो ऐसे मोमिनीन हैं जो आपके ऊपर नाजिल हुआ उसके ऊपर भी ईमान लाए, और आपसे पहले जो नाजिल हुआ वो उसके ऊपर भी ईमान लाए। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। क्या मतलब? वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछली शरीयत में भी अंबिया कराम में भी रोजे रहा करते थे। फरमाया अल्लाह रब्बुल कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आपसे पहले की उम्मतों के ऊपर भी मैंने रोजे फर्ज किए थे। पर उनके रोजों में हमारे रोजों में फर्क है। क्यों ना हो? वो सय्यदुल मुमिनीन, वो सय्यदुल अंबिया की उम्मत नहीं थी। ये उम्मत जो है सय्यदुल अंबिया की उम्मत है। उनके रोजों में हमारे रोजों में फर्क है। उनके रोजे में शब कद्र नहीं थी, हमारे रोजों में शब कद्र है। उनके अंदर सय्यदुल कुतुब यानी कुरान पाक से वो लोग नावाकिफ थे। हमें नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जरिए से इस मुकद्दस किताब को तिलावत करने की इजाजत भी मिली और समझने की भी। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। क्या आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं? हमारे हर अमल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत को देना है। हमारे हर फेल का जवाब हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत को देना है। किसी के ऊपर जुल्म कर दिए, उसका जवाब हमें देना है। किसी को हमने नाहक सताया, उसका जवाब हमें देना है। किसी से हम हसद कर रहे हैं, उसका जवाब हमें देना है। वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अब ये सब होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक सनद से नवाज रहा। वो क्या सनद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। बहुत बड़ी बात है। कुरान का मकसद हमें हिदायत मिलना, हम हिदायत लेना, हमें हिदायत क्या है मालूम होना। इसीलिए कलाम पाक उतारा गया, इसीलिए उतारा गया ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कैसा करें वो जाने। आखिर जिसके हम इबादत कर रहे हैं वो आखिर कैसी जात है वो जाने।
تو اللہ رب العزت فرما رہا کہ یہ جب سب آ گیا آپ کے اندر تو بول رہا اللہ رب العزت اولئک علی ھدی من ربہم، ویسے مومنین ہدایت پر ہیں، یعنی اس کا نزول کا مقصد پورا ہو گیا۔ ویسے مومنین ہدایت کے اوپر ہے، کیسی ہدایت کے اوپر ہے؟ ان کا رب انہیں ہدایت سے نوازا، من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیاب ہے۔ عزیزان محترم، آج اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے ڈگریاں لے لیے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم فلاح یاب ہیں، بڑے بڑے 10 محل ہیں ہمارے، ہم فلاح یاب ہیں، ہمیں کامیابی میں نصیب ہو گئی، ہم کامیاب یافتہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال جنت کی ہم زندگی دیکھ لینا۔ آپ کے پاس محل نہ تھا، نہ آپ کے پاس ایسے زمانے میں جو گاڑیاں پھر رہے وہ نہ تھے، پر اللہ رب العزت بول رہا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیسی تھی؟ عزیزان محترم، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تھے، آپ کا جو مالک تھا بہت سخت دل تھا۔ آپ فرماتے کہ میرے والد صاحب غلام، ان کے والد صاحب بھی غلام تھے، میں بچپن میں بھوکا پیاسا بیٹھا کرتا تھا تو میرے سامنے جو میرے بہنا تھے ان کو دیکھ کے میں رویا کرتا تھا کہ کئی دنوں سے لوگ بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، اور میرا مالک کام کرا کے ہفتوں ہفتوں بھوکے رکھتا تھا، میرے کو کام کرا لیتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے آپ کو۔ پر جب آپ ایمان لائے آپ کو بہت کوڑے مارے، بہت، آپ کے سینے کے پر پتھر رکھا گیا، آپ کے سینے کے پر پتھر۔ آج ہم تھوڑی دیر بھوکے رہنے کے واسطے ہم 10 بار سوچ رہے ہیں روزہ رہنا ہے صرف، جبکہ زمانے کی بات ہے، ایمان ابھی ظلم کے جو کفر کے جو اندھیرے تھے اللہ رب العزت مٹا رہا تھا اس کو۔ نئے نئے صحابہ، غالباً حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں صحابی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے آپ کو ایسے کوڑے مارے گئے کہ آپ بے ہوش ہوتے تھے، صرف زبان کے اوپر احد رہتا تھا، احد یعنی وہ یکتا ہے، وہی نافع ہے، وہی زار ہے، وہی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور کفار مشرکین مکہ کا ایسا ایمان نہیں تھا، وہ لوگ کسی کو زر پہنچانے والا بھگوان الگ، خیر پہنچانے والا بھگوان الگ، نفع پہنچانے والا بھگوان الگ، ایسا تھا لوگوں کے اندر۔ وہ پتھر جو ہے اٹھا کے آپ کے پسلی کے اوپر، سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے، آپ تڑپتے تھے۔ یہ قربانی ہے صحابہ کی، ایسا قربان ہوئے صحابہ، ویسے صحابہ کو اللہ رب العزت فرما رہا اولئک ھم المفلحون۔ ویسی تو ہم قربانی نہیں دے سکتے، ویسے تو نقل تو کر سکتے، جیسا انہیں حکم دے رہا ویسا تو سن سکتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کو تکلیف ہوں گی آپ پانی نہیں پیے، آپ کو تکلیف ہوں گی آپ کھانا نہیں کھائے، آپ کو تکلیف ہوں گی آپ نہیں سوئے، سونا بھی کم ہے نا جی، تراویح زیادہ بڑھا دینا مطلب کیا ہے؟ تہجد کیا ہے؟ آپ تہجد کے عادی بننا، آپ زیادہ نوافل پڑھنے کے عادی بننا، آپ بکثرت قرآن سننے اور سمجھنے کے عادی بننا، اس لیے رمضان آیا۔ کتب علیکم الصیام، صوم کا مطلب یہی ہے، آپ کو جو ضرورت ہے ان ضروریات کو چھوڑ کر بھی اللہ کی طرف آنا۔ اعتکاف کا مطلب بھی یہی ہے۔ آخر میں جو ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بات ہوگی، پر ذرا ضمناً یہاں پہ جیسا بات چھڑ گئی تو بول دوں گا میں۔ اعتکاف کا مطلب بھی یہی ہے، اے میرے مولا میں تیرے در کا کتا، اس کا مطلب ہے اب میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں، جتنا فائدہ مجھے ہوا وہ تیرے ہی بدولت ہوا، اگر میں تیرے پہ توکل رکھا تو میں 2 جہاں میں کامیاب ہوں، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیاب ہے، کامیاب یافتہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی آیتوں کے تعلق سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.